سب سے پہلے میں تمام صحافت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام صحافی حضرات اور اپنے ساتھ آنے والے تمام دوستوں کا، ڈاکٹر مالک صاحب اور ان کے لیڈرشپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم دے کر ہمارے اس پریس کانفرنس کو عزت بخشی۔ بنیادی طور پہ آج کا یہ پریس کانفرنس 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا اور مختصر ہوگا۔ پہلے سے کی ضرورت اس وجہ سے سمجھی کہ میں نے کہا کہ اس تھوڑی سی تفصیل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں تھوڑا سا۔ جب بلوچستان عوامی پارٹی بنی، میں بذات خود نصیب اللہ بنگرزئی، موجودہ ضلع جنرل سیکرٹری کوئٹہ۔ بلوچستان عوامی پارٹی جب بنی اس کے بعد وہ ایک اکثریت کے ساتھ بلوچستان میں نمائندگی بھی حاصل کی، اس کے بعد اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک حکومت بھی بنائی۔ تو بڑے خوش ہوئے ہم، شاید کچھ بلوچستان والے بھی، کہ وہ ایک ہی نعرہ تھا کہ بلوچستان کے مسئلے بلوچستان میں حل ہوں گے، بلوچستان کے مسئلے کہیں باہر نہیں جائیں گے۔ تو اس فکرے نے ہمیں باندھ کے رکھا اس پارٹی کے ساتھ۔ بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کچھ پسند و ناپسند اور کچھ گروپ بندیوں کی بنیاد رکھی گئی، جو پرورش پاتے پاتے اس میں ایک انتشار کی صورت پیدا ہو گئی۔ ہم ایز اے ورکر، ایز اے عہدیدار، ہم نے جب اپنی لیڈرشپ سے بات کی بلوچستان عوامی پارٹی کی کہ خدا را اس کو بند کریں، نہیں تو یہ پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب ہوگا۔ تو ہم نے جن جن لوگوں سے بات کی، جہاں جہاں ہم گئے، سنا ہمیں سب نے، رپلائی ہمیں کسی کی طرف نہیں آئی، نہ پارٹی کے حوالے سے، نہ کسی عہدیدار کے حوالے سے، نہ ایک ورکر کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ ہماری جو مشاورت ہے وہ آلریڈی پہلے سے بھی تھی، علاقائی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، پارٹی حوالے سے بھی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر پوائنٹ کر کے موجودہ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب کا جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہے، اس کے آفس جا کے میں نے اس کو نوٹ کروائی۔ میں نے کہا یہ میرا آخری آنا ہے آفس، برائے مہربانی ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں اور ان کے لیے کوئی سدباب کر لیں۔ ان کا نہیں تو عہدیدار اور ورکر سب سفر کر رہے ہیں، باقی ہم پھر ذمہ دار نہیں ہوں گے اس کے۔ اور یہ بھی پہلے والا جو طریقہ کار تھا یہ بھی سنی انسنی ہو گئی، اس پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی رپلائی ہے۔ تو آج میرے ساتھ جو دوست آئے ہیں، جو معززین میرے ساتھ آئے ہیں، یہ نوٹیبلز ہیں ہمارے اپنے سرائب کے مختلف علاقوں کے، اور ہمارے بنے ہوئے یونٹ ہیڈز ہیں، یونٹ سیکرٹریز ہیں اور یونٹس کے عہدیدار ہیں۔ تو ان تمام سیاسی دوستوں سے ہمیشہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ان سے مشاورت کی، تو ایک ہی فیصلے پہ ہم پہنچے۔ تو اسی لیے یہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے آج میں نصیب اللہ بنگرزئی، ضلع جنرل سیکرٹری بلوچستان عوامی پارٹی کوئٹہ، میں اپنے تمام یونٹس عہدیداروں اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے والے تمام نوٹیبلز اور تمام اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے اس عہدے سے بطور جنرل سیکرٹری کوئٹہ استعفیٰ دیتا ہوں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی رکنیت سے آپ لوگوں کے توسط سے میں اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہی فکرے نے ہمیں باندھ کے رکھا کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہوں گے، اب بلوچستان کے لیے کچھ ہوگا۔ تو جو بلوچستان کے لیے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو کوئٹہ کے لیے ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے، اور تاریخ کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ کبھی اس کو کچھ آگے پیچھے بندہ کر نہیں سکتے۔ ہم نے بڑے پارٹیوں سے لے کر چھوٹی پارٹیوں تک اپنے دوستوں کے ساتھ جو سیاسی طور پہ ہم ساتھ رہے، ہمارے یونٹ ہیڈز، پھر علاقے کے معتبرین، ان سے بات کی مختلف جگہوں پہ۔ تو ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں جب نیشنل پارٹی کو حکومت ملی، حکومت کرنے کے لیے، وہ بھی مختصر سا دور،
जो बलूचिस्तान के शायद कीमती दिन थे, उसमें जो डॉक्टर मालिक साहब ने और उनकी जो हुकूमत ने डिलीवर किया, वो आज भी तारीख का हिस्सा है। तो हम तमाम दोस्त इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मैं नसीबुल्लाह बंगुरज़ई अपने दोस्तों के साथ, अपने यूनिट्स के साथ, अपने यूनिट्स ओहदेदारों के साथ और इलाके के मोतबरी नोटेबल्स के साथ, मैं नेशनल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान के हालात बदलेंगे और बलूचिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ तो ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोगों का मशकूर, शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। और सबसे पहले तो मैं नसीबुल्लाह बंगुरज़ई साहब और उसके तमाम रुफ़का हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ नेशनल पार्टी में। और इस दोस्तों की डिस्कशन में जो हाजी अता मोहम्मद बंगुरज़ई साहब ने जो किरदार अदा किया, गो कि उसकी मुश्किलात हैं वो आज नहीं आ सके, और क्वेटे के दूसरे दोस्तों ने, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जद्दोजहद और उनकी बदौलत है कि आज नेशनल पार्टी क्वेटे में तमाम अक़वाम में, न सिर्फ बलूचों में बल्कि हज़ारा कौम में, पख्तून और पंजाबी में हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इससे कबल शायद नेशनल पार्टी क्वेटा में सियासी हवाले से, अवामी सपोर्ट से वो कमज़ोर रहा है। सरियाब चूँकि बलूच कौमी तहरीक में उसकी एक नुमाया हैसियत रहा है, चाहे 60s हो, चाहे 70s हो या 80s हो, तो सरियाब का जो सियासी कारकुन है वो नेशनल पार्टी में शमूलियत जो इख्तियार कर रहा है, हमें इसलिए खुशी महसूस हो रही है कि किसी ज़माने में हम सब एक थे। चूँकि मैंने भी अपना सियासत का आगाज़ 70s में क्वेटे से किया था, तो आज हमें खुशी महसूस हो रही है नेशनल पार्टी के तमाम दोस्तों को, हमारे कायदीन को, कि मीर साहब के आने से न सिर्फ सरियाब में बल्कि क्वेटे में पार्टी को तक़वियत मिलेगी। दोस्तों, आज हमारी समाज या मुल्की समाज जिस पोलराइजेशन का शिकार है, आज सियासतदान वर्सेस सियासतदान है, जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी है, और एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है। एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है जिसने मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार किया है। महंगाई है, बेरोजगारी है और मीडिया पे कतगने हैं। मैं समझता हूं कि इन तमाम मसाइल का हल एक गैर जानिबदार, शफाफ इलेक्शन है, और वो तमाम अदारे जो रियासती अदारे हैं उनको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने हुदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की ज़रूरत है। हम वाकिफ़ हैं एक दूसरे से। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम 2018 जैसे इलेक्शन को किसी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मुतालबा है कि इलेक्शन शफाफ हों, गैर जानिबदार हों और एक जिम्मेदार हुकूमत की जानिब हम बढ़ें। आज जब हम देखते हैं, जो पिछले 5 सालों में हमारे साथी ने तफसीली बात की जो उनका हिस्सा रहा है, लेकिन हमें मायूसी के बगैर कुछ नहीं मिला है। बलूचिस्तान के सियासी मसाइल और मुश्किलात हों या उसके हेल्थ और एजुकेशन के हों, वो रोज़ ब रोज़ खराबतर
हुए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो जमीनों की जो बंदरबांट है, चाहे कि क्वेटे के जमीन हो या बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों के, खास तौर पर गवादर में जो बंदरबांट शुरू हुई है, हमने जितनी जमीनें कैंसिल की थी, 3.5 लाख एकड़ हमने कैंसिल किए, वो सब उन माफिया को दोबारा अलॉट किया जा रहा है। आज ग्वादर में सरकार को स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज क्वेटे का भी यही हाल है। क्वेटे में तमाम जो है ना, जो सरकारी या अक़वाम की ज़मीनी थी, वो साहिब इख्तियार जो है ना, वो अपने नाम पे अलॉट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इससे पहले कभी भी नौकरियां इस तरह नहीं बिकी हैं कि अगर हमारे जुडिशरी इनको स्टे नहीं कर लेता तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे अनारकी फैल जाती थी, क्योंकि हर आदमी ने दूसरे से जो है ना ग्रेड के हिसाब से लाख लिए हैं कि जी अगर आप जेईटी लेंगे तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। अगर उनके आर्डर नहीं होते तो एक अजीब व गरीब जो है ना सूरत पैदा होती। तो मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिसी यही होना चाहिए जो हमने किया कि तमाम जो अहम पोस्टें हैं, खासतौर पर टीचिंग की, खासतौर पर इंजीनियरिंग की, इन सब को जिस तरीके से हमने NTS किया, पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑर्गेनाइज किया, बलूचिस्तान के बच्चों को हम मेरिट दें। अगर हमने, मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार थे, इतनी करप्शन के बावजूद उन लोगों ने पोस्टें भी बेचना शुरू की, जो इस तरह से बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़या पहले भी हुए हैं, लेकिन बल्क के हिसाब से कभी नहीं हुए। तो मैं एक बार फिर समझता हूं कि इस मुल्क के तमाम पोलराइजेशन का हल एक मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन है, ताकि जो है ना नई हुकूमत आए और पाकिस्तान के चाहे सियासी इशू हों, चाहे वो उसके जो है ना माशी इशू हों, उनको एड्रेस करें और पाकिस्तान में जो ये बेरोजगारी और ये महंगाई का एक बहुत बड़ा अजाब है, इससे अवाम को निजात दिलाएं। मैं एक बार फिर अपने दोस्तों का, नसीबुल्लाह साहब और उसके तमाम कायदीन का मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि नेशनल पार्टी उन्हीं का है और नेशनल पार्टी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में एक भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करके अच्छी नुमाइंदगी लाएगी। और ये तमाम जो गंद है उसको साफ करने वाले पहले भी हम थे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम होंगे। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर। जी डॉक्टर साहब, मौजूदा जी सर, मौजूदा हुकूमत ने फैसला की केयर टेकर हुकूमत की सियासी बुनियादों पर वहाँ पे इंतजाम चलता है, तो आपका क्या होगा? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ ना कि दुनिया में बहुत कम मुल्कों में ये केयर टेकर का जो है ना सिलसिला है, चूंकि केयर टेकर का आइन के अंदर एक तरीक़ेकार दिया हुआ है और यकीनन केयर टेकर को अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना मिलके बनाते हैं। हमारी चूंकि कोई नुमाइंदगी नहीं है माशाल्लाह, तो वहाँ पे हमारी कोई अमल दरामद में दखल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हम कहेंगे कि अगर कोई जानिबदार शख्स नामजद हुआ और हम ये समझते हैं कि वो अपने इलेक्शन को रिग करने के लिए ला रहे हैं, तो हम भरपूर जो है ना उसको रजिस्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हैं हमें इलेक्शन की तैयारियां तो पिछले 4 सालों से कर रहे हैं यार। अभी हम सब तैयार हैं इलेक्शन के लिए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी PDM की सच
नाम के तौर पर वजूद है लेकिन अमलन नहीं है, क्योंकि जब से हमारे पीडीएम के दोस्त इस अपने हुकूमत में गए आज तक पीडीएम की बाकायदा सरबराह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत जो कुछ कर रहा है इस जंजाल में हम नहीं है, हमारी एक अलग हैसियत है। चूंकि पीडीएम के जो हमने 26 पॉइंट पे इत्तेफाक किया, शायद वो अभी 26 पॉइंट जो है ना वो हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर मालिक साहब, आपने जो है 2018 के शेर आप लोग अगर अदारे का नाम बताएं थोड़ा सा। नेशनल पार्टी जो है एक सीट भी हासिल करने में कामयाब नहीं रही, वीडियो बना के जो है इलेक्शन को न मानने का जो फैसला किया गया, लेकिन आपके वही तैयारियां हुकूमत बना के वही इलेक्शन पर जो हुकूमत करे, तो आगे का आपका क्या रायमन है? कौन सा नारा लेकर जो है इलेक्शन में उतरेंगे? अगर ये जो क्या रायमन होगा? नसीर साहब आपको सवाल इसी में ऐड करूंगे। एक दिन की बातचीत में आपने शामिल गिराने का एक नारा हमें जोड़ के लगा, आप जो है बागोरी एक अवाब पर रुख देकर जो है लोग नेशनल पार्टी में शुरू करें, इस पर आप मेरे ख्याल में इसकी जवाब मैं आपको दूंगा। आप एक सही जनरल से, अवाम का रुख कहीं और है, नेशनल पार्टी की तरह नहीं है। ये तो हमारे हम जैसे कोई कॉमरेड्स है, कोई आम वर्कर है जो इलेक्टेबल है, वो कहीं और जा रहे हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि देखें ना, हमारी तो सबसे बड़ी इतराज ये है कि जी बलूचिस्तान को खुदा के लिए सियासी तौर पर देखें, स्ट्रेटेजिकली नहीं देखें। जब सियासी तौर पर आप देखेंगे तो उसके अब हमारी बड़ी पार्टियां हैं, उनको बलूचिस्तान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे 17 सीटें हैं। जब हम आधा पाकिस्तान है, लेकिन चूंकि हमारी सीटिंग कम है लिहाजा कोई रिस्पांस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी कमेटी बनी है जिसमें मीर कबीर साहब हैं, सरबराही में जान प्रेदी साहब हैं, हमारा रामत बलोच हैं, सूबाई साहब खैर बख्श हैं। ये हम तमाम पार्टियों से बातचीत करेंगे फॉर सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि अब जो भी बातचीत होगी, चाहे वो JUI हो, BNP मेंगल हो, मुस्लिम लीग हो, आपका जो है ना पीपल्स पार्टी हो, वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट पे होंगे। तो हमारी कमेटी जाके इंशाल्लाह सबसे बातचीत करेगी और जो भी हमारी इंटरेस्ट में होगी, जो बलूचिस्तान की इंटरेस्ट में होगी, वही हम करेंगे। डॉक्टर साहब, इरादा क्या है अगर आपकी पार्टी को बलूचिस्तान में नुमाइंदगी मिल जाती है इंतखाबात में, आप अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का हिस्सा? सर, हम सियासत कर रहे हैं हुकूमत के लिए। अगर पार्टी की कोई अच्छी पोजीशन आ जाए तो उसको तो हुकूमत में जाना, क्योंकि हम समाजी तब्दीली की बात कर रहे हैं ना, सियासत बराए सियासत की बात नहीं करते हैं। हम सियासत बराए तब्दीली की बात करते हैं, तो उसके लिए हुकूमत में जाना बहुत जरूरी है। ढाई साल दौर रहा, आपने भी कहा कि मैं उसी बीएसओ के जमाने का हूँ और जो मददगार है उनमें से भी उसी बीएसओ से है। आप क्यों अदालत को मामले को खत्म क्यों नहीं करते 2.5 साल में, और अब आखिर में आप आते हैं तो क्या आप करेंगे? थोड़ा सा आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2.5 साल में मैं 60-70% तक पहुंच चुका था। कबीर साहब मौजूद हैं, दूसरे हमारे दोस्त थे, हमने खान साहब के पास भेज दे, खान अफ्तलात के पास, मैं खुद और जनरल कादिर साहब, हम नवाबजादा प्रांतक के पास गए। एक चीजें बहुत ठीक हो रही थी। अब मेरे जाने के बाद जो कुछ किया है, आप उनके हमारी आज भी हमें हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें और बलूचिस्तान में जो आग मुशर्रफ ने लगाई है उसको हम बुझा दें। रोज़ाना जो लोग लापता अफराद हो रहे हैं, उन घरों से पूछो जिनके बच्चे जो है ना गायब हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम पुरअमन रहें, और पुरअमन बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी इस्तेकाम के लिए। थैंक यू। देखिए, मैं उस वक्त नहीं, हमारी तो पीडीएम की जमातों से होगी, जो मैंने नाम भी ले लिए, हमारी इनसे होगी। बाकी बलूचिस्तान में बाकी पार्टियां तो फिलहाल नहीं है,
اگر کوئی آ گیا تو پھر ہم دیکھ لیتے. دوسری بات میں آپ سے ایک عرض کروں نا کہ آپ نے دوسری کوشچن کیا تھا سینسس پہ. دیکھیں نا سینسس ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے نہیں آئے. اگر اس سینسس کو مانا جائے تو بلوچستان کی 5 سے 6 7 سیٹیں بڑھے گی قومی اسمبلی میں. اس لیے اس سینسس کو روکا گیا ہے کہ یہ سیٹیں بڑھیں گی. جب سیٹیں بڑھ جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت شاید وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اس سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے کیونکہ ہماری جو وائس ہے وہ سینٹ میں ہے لیکن سینٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ہماری کوئی اتنی سٹرونگ وائس نہیں ہے. ہم ہر پارٹی 2 3 سیٹیں لے جاتے ہیں اور وہاں ہمیں جو ہے نا بڑی پارٹیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب استقلال کی آپ نے بات کی بٹنے کے معاملہ ہوا 4 وقت سردار نیشنل پارٹی نے کوئی بھی موقف اس حوالے سے سامنے نہیں ہے. سر میں اب سمجھتا ہوں کہ ہماری جو روایت کے مطابق پچھلی دفعہ بھی میرے دور میں ہوا تھا ہم نے روایت کے مطابق سردار اسلام امیر کبیر اور اپنا نواب شاہوانی صاحب سردار بنگلزی صاحب کو بھیجا. اس دفعہ بھی جرگا گیا ہے نواب اسلم ریسانی کی سربراہی میں. ہماری دعا ہے کہ یہ مسئلہ جرگا کے ذریعے حل ہو جائے. سیاسی مسئلہ قبائلی سر جو کچھ میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ڈاکٹر سی پیک کے 10 سال مکمل ہو گئے آج سیلیبریشن شروع ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے بلوچستان کو سی پیک سے وہ کچھ حاصل ہو گیا جو ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں وہ کچھ نہیں. سی پیک سے فی الحال تو بلوچستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے کیونکہ فرض کریں گوادر میں اب تک سی پے کے ایک وہ ہے جو ایسٹ بے بنایا ہے. یہ انٹرنلی جو پورٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ جانتے ہیں. ہمیں تو وہاں کے لیے نو گو ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا ہے اس کے اندر. باقی یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے یہ میرے خیال میں جوائنٹ وینچر ہے. اس میں عمانی گرانٹس بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو دیکھ لینا اگر جو جتنے ایکسپینڈیچر ہوئے 56 یا 57 بلین ڈالر اس میں بلوچستان کے کسی کونے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے بلکہ اس حد تک ہوا ہے کہ وہاں جو لوکل ہے اس کے لیے نہ جابز اپرچونٹی ہے نہ کانٹریکٹ اپرچونٹی ہے. اور ویسی بلوچستان کو جو ریونیو ہوتی ہے وہ زیرو ہے. 93% چائنا لے جاتا ہے 7% فیڈرل گورنمنٹ. اور یہ بھی کلاس موجود ہے کہ آپ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں. جس سے بڑا زیادہ زیادتی کیا ہے. بلوچستان اور گوادر والے ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.